Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from the 10th class, and today our topic is the nutrition in animals. In the last lecture we discussed the nutrition in plants, how the plants obtain their nutrients and take their nutrition. And in this video we discuss the nutrition in animals. As we all know, animals are of two types. One are the categorized as unicellular and second one is the multicellular. Unicellular organisms are those which are made up of a single cell. Multicellular which are made up of a larger number of cell. In unicellular organism, a single cell perform all the functions, like in case of amoeba, paramecium. These are the unicellular organisms in which a single cell performed all the functions of the body, means digestion hai, excretion hai, respiration, reproduction, everything performed by a single cell. But in case of multicellular organism, like as a human beings, there are special specified cells to perform the specific functions. Means for the digestion there is the digestive system, for the respiration there is the respiratory system, for reproduction there are the different reproductive part in the body. So in multicellular organism there are the organization of the different cell that forms the organ, tissues and organ system, and that result into the performance of the different functions by the different parts or the organ systems. Today we discuss about the nutrition in these unicellular, and after that we discuss the nutrition in multicellular. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज न्यूट्रिशन इन अमीबा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल. इट ईट्स द स्मॉल प्लांट्स, मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करता है एज अ फूड दैट प्रेजेंट इन द वाटर इन विच द अमीबा ऑलरेडी लीव्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा इज holozoic. Which type of nutrition mode? That is the holozoic. Holozoic mode of nutrition हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. मीन्स सॉलिड फूड मटेरियल्स को क्या करना, इनटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन. मीन्स in case of holozoic we follow the 5 step. First, ingestion means intake of food. Then digestion means कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में चेंज कर देना, सिंपल वन में, सो दैट इजीली द बॉडी पार्ट्स एब्जॉर्ब दैट डाइजेस्टेड फूड. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एंड दैट यूटिलाइज दैट फूड दैट इज एब्जॉर्ब्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड दैट स्टेप इज नोन एज द एसिमिलेशन. And last one, egestion, means excrete out the undigested or waste food outside the body. It means in case of amoeba there are the holozoic mode of nutrition, and there is the 5 steps in their mode of nutrition or in the process of nutrition. Amoeba generally called the phagocytosis, means the process of obtaining the food in case of amoeba is called phagocytosis. Phagocytosis अगर हम ग्रीक में इसका मीनिंग देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ द 3 वर्ड. फर्स्ट फैगिन, देन साइट, एंड थर्ड वन इज ओसिस. इन ग्रीक फैगिन मीन्स टू ईट, site means cell, osis means process. It means phagocytosis is the process of ingestion or uptaking of the solid food, means microorganism, by a cell, and that process is said to be the phagocytosis. तो जनरली जो अमीबा हमारे पास है दैट एनगल्फ द सॉलिड फूड मटेरियल. उसमें कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, एंड दैट सॉलिड एनगल्फिंग ऑफ द फूड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का सिंपल मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से,
It means the self-feeding. So it is also known as the self-feeding. Now we discuss these 5 steps one by one diagrammatically in case of the amoeba. बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा. कैसी शेप है? इरेगुलर शेप. आप जैसा चाहो इसकी शेप बना सकते हो. सेंटर में आपके पास क्या है? इसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, मीन्स द सेल फ्लूइड. In case of amoeba, there is no any specific place for the intake of the food. मीन्स अमीबा के पास कोई माउथ पार्ट नहीं है जहाँ से वो स्पेसिफिकली अपने फूड को क्या करे? इंजेशन करे, मीन्स उसका इनटेक करे. तो अमीबा के अंदर जब भी इनटेक ऑफ फूड होगा यानी कि इंजेशन होगा तो वो क्या करेगा? इस तरह से फॉल्स फिंगर्स बनाएगा. एंड दीज फॉल्स फिंगर्स आर नोन एज सूडोपोडिया. Pseudo plus podia. Pseudo means false, podia means finger. और वो कब बनाएगा इस pseudopodia को? When the food particle is near to amoeba. Pseudopodia ने इस food particle को क्या किया? engulf किया और उसको क्या कर लिया? surround कर लिया. और फिर ये इसको यहाँ से enclose कर देगा और temporary यहाँ पर क्या कर देगा? There is the filling of the water. And that result into the formation of food vacuole. Means first उसने food को क्या किया? engulf किया, then surrounded by the little amount of the water to form the food vacuole. हम ये बोल सकते हैं that food vacuole is considered as the temporary stomach of the amoeba, जहाँ पर क्या होगा? digestion of the food. अब यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है दैट इज द इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ द फूड. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा? दैट इज द डाइजेशन. अब ये फूड वैक्यूल कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर. और साइटोप्लाज्म में से इसके अंदर किसकी एंट्री हो जाएगी? एंजाइम्स की. वो एंजाइम्स क्या करेंगे? इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द स्मॉल एंड सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, एंड दैट पार्ट इज नोन एज द डाइजेशन. अब जब फूड पर एंजाइमेटिक एक्शन होगा, मीन्स एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, देन इट मस्ट बी रिलीज इनटू द सेल फ्लूइड. मीन्स यहाँ से डाइजेशन के बाद जो फूड होगा वो क्या करेगा? इस फूड वैक्यूल से बाहर की तरफ मूव करेगा और उसको सेल क्या करेगी? फिर एब्जॉर्ब करेगी. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. पहले यहाँ पर सॉलिड फूड था, अब इसको हमने छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म में दिखाया. मीन्स इट इज डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल पीसेस एंड दैट रिलीज इनटू द सराउंडिंग सेल फ्लूइड, एंड द सेल पार्ट्स एब्जॉर्ब इट, एंड दैट कॉल्ड द स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. उसके बाद वो क्या करेगा? एसिमिलेशन. मीन्स वो उसको यूटिलाइज करेगा फॉर देयर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मीन्स अब जो अमीबा होगा उसका साइज क्या कर जाएगा? एनलार्ज. क्यों? क्योंकि उसने डाइजेस्टेड फूड को क्या किया? एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्ब करके क्या किया? उसने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको यूटिलाइज किया. लास्टली अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ से ये अमीबा अपनी बॉडी से किस चीज़ को रिलीज कर देगा? वेस्ट फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को, and that is said to be the last egestion step, removal of waste food. And these are the complete steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. One more thing, remember that student, यहाँ पर हमारे पास अमीबा क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है, मीन्स एनलार्ज कर जाता है अपने साइज में. उसके बाद वो क्या करता है? अंडरगो द रिप्रोडक्शन एंड डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर cells through the process known as the binary fission. तो हमारे पास जो ये एसिमिलेशन के बाद ग्रो की थी सेल, बाइनरी फिजन में जाएगी एंड डिवाइडेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स और द डॉटर न्यूक्लियाई, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन इन द अमीबा. नाउ सेकेंड इज द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. अमीबा का जैसे अभी हमने डाइजेशन का सिस्टम और न्यूट्रिशन के सिस्टम को डिस्कस किया तो मैंने बताया कि उसमें कोई स्पेसिफिक प्लेस ही नहीं है.
फॉर द इनटेक ऑफ द फूड, मीन्स वहाँ पर माउथ पार्ट भी नहीं है, और एक्सक्रीट आउट करने के लिए एनस पार्ट भी नहीं है। वहाँ पर एक सिंगल सेल है जो सारा फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इसके केस में क्या है कि फूड को एनगल्फ करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, माउथ पार्ट। पैरामीशियम की जो शेप है वो कैसी होती है, स्लीपर शेप, मीन्स जैसे चप्पल होती है तो चप्पल के आकार का ये होता है, तो इसकी एक स्पेसिफिक शेप है। और इसकी पूरी बॉडी पर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, सीलिया। This is the proper shape of the amoeba, just like the slipper shape, and this is the part known as the mouth part. These are the hair-like projection, cilia, and there is the nucleus, and in this such type of structures are present known as contractile vacuole. This helps to maintain the water level inside the body. डॉटेड फॉर्म में हमने किसको दिखाया है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म को। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल कहाँ आएगा, नियर टू द माउथ पार्ट, और अगर फूड पार्टिकल दूर भी होता है तो सीलिया हेल्प करते हैं टू अप्रोचेज द फूड पार्टिकल नियर टू द माउथ पार्ट बाय देयर बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट। मीन्स सीलिया जो है वो बैक और फ्रोथ बहुत फास्टली मूव करते हैं, दे स्विप द फूड टूवर्ड्स द माउथ पार्ट ऑफ द पैरामीशियम। मीन्स जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ आएगा तो एंटर करेगा माउथ पार्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट इज द इंजेशन। जैसे ही ये माउथ पार्ट में जाएगा, दैट सराउंडेड बाय द फ्लूइड दैट हैव द एंजाइम्स एंड स्टार्ट द एंजाइमेटिक एक्शन ऑन द फूड। मीन्स उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन इट रिलीजेज द simple food particle inside the body or inside the cell fluid, and that process is known as the absorption. After that, that simple food particles utilizes for the growth and development of the body and known as assimilation, and ultimately the undigested food is releases outside the body and that is known as the egestion। और egestion भी स्पेसिफिकली कहीं कहाँ से होगा, इसी पार्ट से जहाँ से इनटेक ऑफ द फूड हुआ वहीं से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ द वेस्ट और द अनडाइजेस्टेड फूड। The process of nutrition in case of paramecium is similar as that of the amoeba। सिर्फ एक सिंपल आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकली माउथ पार्ट है, but in case of amoeba there is no specific opening for the intake of food। Thanks and have a nice day।